God, help him. Please call the doctor. Why is he shivering? Is he dead? What happened to him? Is he possessed or what? Has he taken some drugs? I think so. No. Do not panic. Try to restrain him. Do not restrain the person. This may result in an injury. Give him water and sugar. Do not put anything into the person's mouth. Na. Make him smell socks and onion. That works the best. Please don't panic. This is a seizure attack. Let me have a look. Stay with the person and start timing the seizure. Remain calm and check for medical ID. Keep the person safe. Move or guide away from harmful objects. Turn the person onto their side to help keep airway clear. Put something small and soft under the head. Loosen tight clothes around neck. Stay with them until they are awake and alert after the seizure. Seizures do not usually require emergency medical attention. However, one should immediately call medical help if seizures last longer than 5 minutes or if a person has many seizures and does not regain consciousness. Are you feeling all right? Don't worry, you are fine now. It was a seizure attack. I suggest you consult a neurologist as early as possible. Doctor, yesterday while going to the office, I suddenly fell unconscious and my entire body started shaking involuntarily. It was so sudden, doctor. I am unable to recollect anything. Doctor, I don't know what to do. Am I suffering from some incurable illness? What will happen to my family? What about my career? Will I need a surgery? Please calm down. Looking at your brief history, it seems you had a seizure attack. We will do some investigations to get the exact diagnosis, but it seems more likely to be an epileptic seizure. What? Epilepsy? What is it? Is it a mental disorder? Will I be cured? Please relax. Let me explain you about epilepsy. Epilepsy is one of the most common neurological disorder of the brain that affects people of all ages, in which the brain activity becomes abnormal, causing seizures. Of the 70 million persons with epilepsy worldwide, nearly 12 million persons with epilepsy are expected to reside in India. Doctor, what causes epilepsy and seizures? Causes of epilepsy vary by age of the person. In many cases, the exact cause is not known. Some people have inherited genetic factors that make epilepsy more likely to occur. Other factors that may increase the risk include low oxygen during birth, head injuries that occur during birth, or from accidents during youth or adulthood, brain conditions including stroke or tumors, brain infections, and developmental disorders. I heard people say, with epilepsy I will not be able to live life to the fullest. Please don't let epilepsy take away colors from your life. Epilepsy can be managed effectively by simple, inexpensive medication, with 70 to 80% of persons able to lead a normal life. How long will I have to take medicines? In most of the cases, after 2 to 5 years of successful treatment and being seizure-free, the dosage of the seizure medication can be tapered and eventually stopped. Some people may require treatment for longer duration. But one important thing, never stop taking epilepsy medication without your doctor's advice. 40% of the patients do not adhere to their epilepsy treatment, leading to increased chances of injury, thereby increased episodes of hospitalization and impaired quality of life. So, taking regular medication is a key to successful treatment. Doctor, I am relieved now.
I will not let epilepsy take away colors of my life. I pledge to treat it, defeat it. Let's spread the colors of freedom together. हे भगवान, इसकी मदद करो। मेहरबानी करके कोई डॉक्टर का संपर्क करे। इतना कांप क्यों रहा है? मर गया क्या? अरे क्या हुआ इसको? किसी ने वश में तो नहीं कर लिया है ना? इसने कोई नशा तो नहीं किया है ना? मुझे तो लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, घबराइए नहीं। अरे कोई इसको पकड़ के काबू में रखने का प्रयास करे। इनको पकड़े नहीं, इससे ये घायल हो सकते हैं। अरे इन्हें पानी या शक्कर पिलाओ। नहीं नहीं नहीं, इसके मुंह में कोई भी चीज या वस्तु नहीं डाले। नहीं नहीं नहीं, कोई इसे पैर के मोजे या प्यार सूंघाए। ये सटीक असर है। कृपया घबराइए नहीं, ये मिर्गी का दौरा है। मुझे देखने दें। व्यक्ति के साथ रहें और मिर्गी के दौरे की अवधि देखना शुरू करें। शांत रहें और मेडिकल आईडी की जांच करें। व्यक्ति को सुरक्षित रखें, उसे हानिकारक वस्तुओं से दूर लेकर जाएं या उसका मार्गदर्शन करें। खुली साफ हवा के लिए उसे एक तरफ पलटकर सुलाने में मदद करें। सर के नीचे कोई छोटी और मुलायम वस्तु रखें। गले के आसपास के चुस्त कपड़ों को ढीला करें। मिर्गी आने के बाद जब तक उन्हें होश ना आए या वो सतर्क ना हो तब तक उसके साथ रहें। आमतौर पर मिर्गी को आपातकाल चिकित्सा सहाय की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस व्यक्ति को 5 मिनट से ज्यादा देर तक मिर्गी के दौरे आते हैं या व्यक्ति को बहुत मिर्गी से होश ना आए तो किसी को तुरंत चिकित्सा सहाय के लिए संपर्क करना चाहिए। क्या आप ठीक हैं? चिंता ना करें, अब आप ठीक हैं। वो मिर्गी का दौरा था। मेरा तुम्हें सुझाव है कि तुम्हें जल्द से जल्द न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर, कल दफ्तर जाते वक्त मैं अचानक बेहोश होकर गिर गया। मेरा पूरा शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर, मैं नहीं जानता कि क्या करना है। क्या मैं कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित हूँ? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी नौकरी का क्या मुझे सर्जरी की आवश्यकता होगी? कृपया शांत हो जाइए। आपके संक्षिप्त इतिहास को देखकर ऐसा लगता है कि आपको मिर्गी का दौरा आया था। हम कुछ सटीक निदान पाने के लिए कुछ जांच करेंगे, मगर यह मिर्गी का दौरा है, इसकी संभावना ज्यादा है। क्या? मिर्गी? ये क्या है? क्या ये मानसिक विकार है? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? कृपया आप आराम करें। मैं आपको मिर्गी के दौरे के बारे में बताता हूं। मिर्गी मस्तिष्क के सबसे सामान्य विकार में से एक है, जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो जाती हैं, जिससे दौरे पड़ते हैं। दुनिया भर में मिर्गी से पीड़ित 7 करोड़ लोगों में से मिर्गी से पीड़ित लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग भारत में निवास करते हैं। डॉक्टर, मिर्गी के दौरे आने के कारण क्या है? मिर्गी के कारण व्यक्ति की उम्र की वजह से भिन्न भिन्न होते हैं। कई मामलों में सटीक कारणों का पता नहीं चलता। कुछ लोगों को विरासत में मिले आनुवांशिक कारक से मिर्गी होने की संभावना अधिक हो जाती है। जोखिम बढ़ाने वाले अन्य कारकों में शामिल है जन्म के दौरान कम ऑक्सीजन, सर में लगी चोटें जो जन्म के दौरान या युवा अवस्था या वयस्कता के दौरान हुई दुर्घटना से होती है, स्ट्रोक या ट्यूमर सहित मस्तिष्क की स्थिति, मस्तिष्क में संक्रमण और विकास संबंधी विकार। मैंने लोगों द्वारा सुना है कि मैं मिर्गी के साथ पूरी तरह से जीवन नहीं जी पाऊंगा। कृपया मिर्गी को आपके जीवन के रंगों को छीनने ना दें। मिर्गी को सामान्य सस्ती दवाओं द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे 70 से 80% लोग सामान्य जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मुझे कब तक दवाइयां लेनी होंगी? ज्यादातर मामलों में 2 से 5 साल के सफल इलाज और दौरे से मुक्त होने के बाद मिर्गी की दवा की खुराक को कम किया जा सकता है।
और अंततः बंद किया जा सकता है। कुछ लोगों को लंबी अवधि तक उपचार की आवश्यकता होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अपने चिकित्सक की सलाह के बिना मिर्गी का इलाज कभी बंद मत करना। 40% मरीज उनके मिर्गी के इलाज का पालन नहीं करते, जिससे चोट बढ़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जिससे अस्पताल के चक्कर बढ़ना और जीवन का स्तर बिगड़ता है। इसलिए नियमित रूप से इलाज करवाना सफल उपचार की कुंजी है। डॉक्टर साहब, मैं अब निश्चिंत हो गया हूँ। मैं मिर्गी को अपने जीवन के रंगों को छीनने नहीं दूंगा। मैं इसका इलाज करके इसको पराजित करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। चलिए साथ मिलकर आजादी के रंगों को फैलाएं। अरे देवा, त्याला मदत करा. कृपया डॉक्टरला संपर्क करा. तू कापत आहे. मेला काय? अरे याला झालं काय? वशीकरण झालं काय? त्याने काही नशा तर नाही केला ना? मला तर वाटते. नाही नाही नाही, घाबरू नका. त्याला धरून ठेवायचा प्रयत्न करा. व्यक्तीला धरू नका, यामुळे कदाचित तो जखमी होऊ शकते. त्याला पाणी किंवा साखर द्या. त्या व्यक्तीच्या तोंडात काहीच ठेवू नका. ना ना ना, त्याला मोजे आणि कांद्याचे वास द्या, तो चांगली असर करते. कृपया घाबरू नका. हे मिरगीचा दौरा आहे. मला बघायला द्या. व्यक्तीसह राहा आणि फिट आल्याची वेळ मोजा. शांत रहा आणि वैद्यकीय आयडी तपासा. व्यक्तीस सुरक्षित ठेवा. हानिकारक वस्तूकडून दूर घेऊन जावा किंवा मार्गदर्शन करा. वायुमार्ग स्वच्छ ठेवण्यात मदत करण्यासाठी व्यक्तीला एका बाजूला फिरवा. डोक्याखाली काहीतरी लहान आणि मऊ ठेवा. मानचा आजूबाजूचे चुस्त कपडे सोडवा. फिट आल्यानंतर जेव्हापर्यंत व्यक्तीला होश किंवा तो सतर्क होत नाही तोपर्यंत त्याच्या सोबत राहा. फिट आल्यावर सामान्यतः आपत्कालीन वैद्यकीय लक्ष्याची आवश्यकता नसते. तथापि 5 मिनिटापेक्षा जास्त काळ थांबल्यास किंवा एखाद्या व्यक्तीला अनेक फिटचे दौरे असतील आणि पुन्हा होश आल्या नसल्यास तर एखाद्याने त्वरित वैद्यकीय मदतीचा संपर्क केला पाहिजे. आपल्याला आता बरं वाटत आहे का? काळजी करू नका, तुम्ही आता ठीक आहात. हा फिटचा दौरा होता. मला असं वाटते की आपण शक्य तितक्या लवकर न्यूरोलॉजिस्टची सल्ला घ्या. डॉक्टर, काल कामावर जाताना मी अचानक बेसूत पडलो आणि माझा संपूर्ण शरीर अनैच्छिकपणाने कंपू लागला. हा इतका अचानक झाला, मला काही आठवत नाही. डॉक्टर, काय करावे मला माहित नाही. मी काय असाध्य आजारीने ग्रस्त आहे? माझा परिवारचा काय? माझी कारकिर्दी? मला शस्त्रक्रियाची गरज आहे का? कृपया शांत व्हा. आपला थोडक्यात इतिहास पाहताना आपल्याला फिटचे दौरे आले आहे असे दिसते. आपण निश्चित निदान मिळविण्यासाठी काही तपास करू, परंतु असे दिसून येते की हे फिटचे दौरे होण्याची शक्यता आहे. काय? फिट? हे काय आहे? ही काय मानसिक रोग आहे का? मी बरं होईल का? कृपया आराम करा. मी आपल्याला फिट बद्दल समजावून सांगू. एपिलेप्सी हे मेंदूतील सर्वात सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारपैकी एक आहे, जे सर्व वयोगटातील लोकांना प्रभावित करते, ज्यामध्ये मेंदूच्या क्रियाकलाप असामान्य होतो, ज्यामुळे फिटचे दौरे येतात. जगभरात फिट असलेल्या 7 कोटी लोकांपैकी सुमारे 1,20,00,000 लोक भारतातच राहतात. डॉक्टर, फिटचे दौरे कशामुळे होतात? फिटचे कारण व्यक्तीच्या वयानुसार बदलते. बऱ्याच बाबतीत अचूक कारण माहीत नाही. काही लोकांना आनुवांशिक घटक मिळाले आहेत, ज्यामुळे फिट अधिक होण्याची शक्यता असते. जोखीम वाढविणाऱ्या इतर घटकांमध्ये हे समाविष्ट आहे: जन्म दरम्यान कमी ऑक्सिजन, जन्म किंवा युवक किंवा प्रौढपणा दरम्यान दुर्घटनांमधून डोक्यावर झालेली जखम, स्ट्रोक किंवा ट्यूमरसह मेंदूची स्थिती,
मेंदूतील संक्रमण आणि विकासात्मक विकार. लोकांना असं म्हणताना मी ऐकलंय की फिटमुळे मी माझं जीवन संपूर्णपणे जीवू शकणार कृपया नाही. फिटला आपल्या जीवनाचे रंग दूर करायला देऊ नका. फिट सोपी स्वस्त औषधाद्वारे प्रभावीपणे व्यवस्थापित केली जाऊ शकते, ज्यामुळे 70 ते 80% व्यक्ती सामान्य जीवन जगण्यास सक्षम झालेली आहे. मला किती दिवस औषधी घ्यावी लागेल? बहुतेक प्रकरणांमध्ये 2 ते 5 वर्ष यशस्वी उपचारानंतर आणि फिट मुक्त झाल्यावर फिटचे औषधांचे प्रमाण कापला जाऊ शकतो आणि शेवटी थांबविला जाऊ शकतो. काही लोकांना दीर्घ कालावधीसाठी उपचारांची आवश्यकता असू शकते. पण एक महत्त्वाची गोष्ट, आपल्या डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय फिटची औषधे कधीही थांबवू नका. 40% दर्दी त्यांच्या फिटच्या उपचारांचे पालन करीत नाहीत, त्यामुळे जखम वाढण्याची शक्यता वाढते. यामुळे हॉस्पिटलायझेशन आणि खराब जीवनशैलीची गुणवत्ता वाढते. अशा प्रकारे नियमित औषधोपचार करणे ही यशस्वी उपचारांची एक महत्त्वाची चावी आहे. डॉक्टर, आता माझ्या मनात राहत झाली. मी फिटला माझ्या आयुष्याचे रंग दूर करायला देणार नाही. मी औषधी घेऊन त्याला पराभूत करण्याची प्रतिज्ञा घेतो. या स्वातंत्र्याचे रंगाचा प्रसार करूया.